Dear viewers, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Today we'll discuss about an auspicious plant, Ocimum sanctum. It's also known as Vrinda in India. In Hinduism, Tulsi is worshipped as physical incarnation of goddess Lakshmi on earth. Every part of Tulsi plant is revered and considered sacred. Leaves, stems, flowers, roots, and even soil where it has grown is considered abode of various deities. It's an aromatic perennial flowering plant from the mint family called Lamiaceae. The plant is native to Indian subcontinent, but it grows throughout Southeast Asia. It is present in Himalayas up to 18 meters above the sea level. 1800. It's also a common culinary herb. There are few main varieties of Tulsi. Rama or Shri Tulsi, which has green leaves. Krishna or Shama Tulsi has purple colored leaves. Vana Tulsi, dark green leaves. And Kapoor Tulsi. तुलसी का हिंदू संस्कृति में अत्यधिक धार्मिक महत्व है। तुलसी की माँ लक्ष्मी की तरह पूजा की जाती है। Tulsi is believed to be the gateway of the Vaikuntha Dham, the abode of Lord Vishnu. She helps devotees in getting closer to their ultimate goal, moksha, liberation from the vicious cycles of birth, death, and rebirth. She is worshipped every day for peace and prosperity. तुलसी आयुर्वेद जगत में प्रत्येक रोग में काम आने वाली औषधियों में प्रमुख है, जिसकी प्रयोग विधि जान लेने से वैद्य संसार के लगभग सभी रोगों से लड़ सकता है। तुलसी को सर्व रोग संहारक प्रवृत्ति के कारण ही घर में घरेलू वस्तु की श्रेणी में रखा गया है। इसकी गंध से मलेरिया के मच्छर दूर भागते हैं। तुलसी के पौधे में प्रबल विद्युत शक्ति होती है, जो पौधे के चारों ओर 200 गज तक रहती है। आयुर्वेद के मत से तुलसी का कटु तिक्त रस हृदयग्राही और पित्तनाशक है। यह कुष्ठ, पथरी, रक्त दोष, पसलियों के दर्द, चर्म रोग, कफ और वायु जनित रोगों का नाशक है। कृष्ण और शुक्ल दोनों तुलसी के गुण समान होते हैं, क्योंकि मुख्य तौर पे यही दो तुलसियाँ प्रचलित हैं। तुलसी काष्ठ धारण करने से शरीर की विद्युत शक्ति नष्ट नहीं होती, इसी कारण इसकी माला पहनने का प्रचलन है। There are unlimited medical benefits of तुलसी। पूरा एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। It copes with various human body stressors. Tulsi protects organs and tissues against chemical stress from industrial pollutants. It saves us from emotional stress, psychological stress. It has positive effect on memory and cognitive functions. दुनिया की सारी बुराइयों के आगे अगर एंटी लगा दिया जाए तो वो सब तुलसी में है। इट्स एंटी डिप्रेसेंट, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एस्थमेटिक properties. It can be used as hand sanitizer, mouthwash, water purifier.
It improves metabolic functions, which raise the risk of heart-related problems. It reduces blood pressure, blood sugar, cholesterol, betters lung function, makes healthy skin, fights cancer, improves immune system. It's also useful in kidney stones and gouty arthritis. So, Tulsi is called golden remedy in Ayurveda. It has little to no side effects. If a person is reactive to holy basil, some care should be taken in pregnancy or breastfeeding. It may interfere with blood thinning and diabetic medicines. Tulsi leaf should be swallowed, not chewed. There are many more medical benefits of Tulsi. The leaves are rich in vitamin A, C, K and minerals like calcium, magnesium, phosphorus, iron, potassium. It also has a good amount of protein and fiber. For centuries, the dried Tulsi leaves have been mixed with stored grains to repel insects. The extracts from Tulsi leaves can also be applied to insect bites. In Hinduism, no puja of Lord Vishnu is complete without Tulsi. Tulsi garlands are offered to Sri Vishnu. Tulsi leaves are necessary in Panchamrit. There are many stories about the importance of Tulsi in Lord Vishnu's life. Lord Krishna once hosted a Tulabharam where all of Satyabhama's jewels, gold jewelry, was on the opposite side of the pan in the balance, and Rukmini kept a single Tulsi leaf, and Lord Krishna's pan on the other side went up. Thus, Krishna accorded the Tulsi plant tremendous reverence and dominance. Some people arrange Tulsi Vivaha on Ekadashi of Shukla Paksh in Kartik. Tulsi and Lord Vishnu in the form of Shaligram are married on this day by some people as a ceremony. साथियों, यदि तुलसी दल को तोड़ें तो उसकी मंजरी और उसके पास के पत्ते ही तोड़ने चाहिए, जिससे पौधा अधिक बढ़े। और यदि पत्तों में छेद दिखाई दे तो कंडों की राख या हल्दी का औषधि रूप में प्रयोग करें। अपने घर में तुलसी का पौधा रोपने से और उसका दर्शन करने से पुराणों के अनुसार ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हजारों आम और पीपल लगाने का जो फल होता है वह तुलसी रोपने का फल होता है। कार्तिक मास में तुलसी की जड़ में शाम को दीपक जलाते हैं, उनके घर में श्री और संतान की वृद्धि होती है। जो तुलसी की मंजरी को श्रावण भाद्रपद में भगवान विष्णु को चंदन सहित अर्पित करते हैं, वे लोग मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तुलसी को रोपने और उसे दूध से सींचने पर स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तुलसी की मृतिका मिट्टी को माथे पर लगाने से तेजस्विता बढ़ती है। तुलसी युक्त जल से स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। हमारे पुराणों के अनुसार ही तुलसी की छाया में श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। तुलसी का चयन तोड़ना गणेश पूजन में पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, संक्रांति, कार्तिक द्वादशी में निषिद्ध है। इसके सिवाय मैले शरीर से संध्या के समय, रात को एवं अशुद्ध अवस्था में भी तुलसी तोड़ना निषिद्ध है।
तुलसी के रोगों में इतने अधिक फायदे हैं कि इसे आरोग्य लक्ष्मी कहते हैं। तुलसी symbolizes health, wealth, purity and positivity and is rightly called the queen of herbs. स्कंद पुराण और पद्म पुराण के उत्तरखंड में आता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ के समान है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार तुलसी जी श्री हरि की इच्छा से गंडकी नदी के रूप में प्रकट हुई और उनके केश से तुलसी का वृक्ष बना। तुलसी जी का परम कल्याणकारी नामाष्टक स्तोत्र जिससे भगवान श्री हरि ने उन्हें प्रसन्न किया वह ध्यान से सुनिए। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। भगवान नारद जी को तुलसी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि पुष्पों में किसी से भी जिनकी तुलना नहीं है, जिनका महत्व वेदों में वर्णित है, जो सभी अवस्थाओं में सदा पवित्र बनी रहती हैं, जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध हैं, जो भगवान के लिए शिरोधार्य हैं, सबकी अभीष्ट हैं तथा जो संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली हैं, उन जीवन मुक्त मुक्तिदायिनी तथा श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली भगवती तुलसी की हम सबको उपासना करनी चाहिए। पुष्पेषु तुलना यस्या नास्ति वेदेषु भाषितम् पवित्र रूपा सर्वासु तुलसी सा च कीर्तिता शिरोधार्या च सर्वेषामेप्सिता विश्व पावनी जीवन मुक्ताम मुक्तिदाम च भजेताम हरि भक्तिदाम। साथियों, हमें चाहिए कि हम जगह जगह तुलसी के पौधे लगाएं, घर और घर के आसपास वृंदावन बनाएं, पवित्र बनाएं अपने आसपास का क्षेत्र और स्वस्थ रहें। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel and give me comments about this video. Thanks for watching.